Good morning to all. After completion the part of star connection of chapter number 3, we are going to have a view on the delta connection, and this delta connection is represented by like this triangle. Let's see what they told us. We are going to follow the same procedure for the procedure which we followed in star connection, and by that procedure we are going to have a view and understand about the delta connection. What is mean by delta connection? Delta or mesh connection system is also known as three phase three wire system, and it is the most preferred system for AC power transmission, while for distribution star connection is generally used. Means they told us the three phase the delta connection is system is also called as the three phase three wire system, and this delta connection system is generally preferred or useful for the purpose to transmit the power, and for the purpose of distribution the star connection is generally used. In delta, also denoted as star, as I already told you, in delta system of interconnection, the starting ends of the three phases or coils are connected to the finishing end of the coil, or the starting end of the first coil is connected to the finishing end of the second coil, and so on for all three coils, and it looks like a closed mesh or a circuit as shown in figure 1. Okay, what is mean by delta connection? How the delta connection is going to be formed in this diagram? You can see it clearly. See, suppose this is a R winding, this is Y winding, and this is a B winding. The end of this R winding is connected to the starting side of this B winding. The end of this B winding is connected to the starting side of the Y winding, and the end of this Y winding is connected to the starting end of the R winding, and like that it is going to be formed, and as it looks like a closed circuit, therefore it is called as a closed loop or mesh loop connection also. In more clear words, all three coils are connected in series to form a closed or mesh or circuit. Closed mesh or circuit. Three wires are taken out from three junctions, and all the outgoing currents from the junction assumed to be positive. यहाँ पर क्या किया है देखिए, हमारा जो बी एंड का है, फिर से मैं बताता हूँ, हमारा जो ए बी वाइंडिंग है, ए आर वाइंडिंग है और ए वाई वाइंडिंग है। बी वाइंडिंग का जो एन टर्मिनल है वो वाई वाइंडिंग के स्टार्टिंग टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है। वाई का जो एंड टर्मिनल है वो आर के स्टार्टिंग टर्मिनल को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, और आर का जो एंड टर्न है, एंड पार्ट है, उससे क्या किया है, बी के स्टार्टिंग टर्न को मतलब स्टार्टिंग पार्ट को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, और उसी तरह से एक क्लोज आपको दिखता है, मेश दिखता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, मेश सर्किट भी कह सकते हैं। इसमें जो करंट हमारा फ्लो होता है वो अगर एक सर्किट में आप एज्यूम करते हैं तो उसका अलजेब्रिक सम क्या होगा, दोनों दो पार्ट होंगे, और इट इज गोइंग टू बी एज्यूम देयर इट इज टू बी पॉजिटिव। In delta connection, the three windings interconnection looks like a short circuit, but this is not true. If the system is balanced, then the value of algebraic sum of all voltages um, around the mesh is zero in delta connection. Delta connection में देखिए यहाँ पर जो B है वो B वाइंडिंग R को और Y को कनेक्ट है, Y वाइंडिंग B और R को कनेक्ट है, और R वाइंडिंग B और Y दोनों को भी कनेक्ट है। ये आपको क्या लगता है, शॉर्ट सर्किट दिख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या किया है, ये जो तीनों वाइंडिंग्स है वो एक दूसरे को सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं, और वहां पर क्या होता है, हमारा जो अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज होता है आर वाइंडिंग में सा, आर वाइंडिंग का, वाई वाइंडिंग का और बी वाइंडिंग का, ये जो इनका अलजेब्रिक सम होता है वो क्या रहता है, जीरो रहता है डेल्टा कनेक्शन में। ओके, इसीलिए ये शॉर्ट नहीं होते। When a terminal is open in delta, then there is no chance of flowing currents with basic frequency around the closed mesh, as it is going to be a closed form. Therefore, if suppose there is any type of open connection for any winding, then there is no chances to flow the current in the delta connection, and it is not going to be closed. Therefore, it can't act as a delta connection. Good to remember, in delta configuration at any instant the EMF value of one phase is equal to the resultant of the other two phase EMF values but in opposite direction। यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो EMF
वैल्यू होता है एक वाइंडिंग का, वो क्या होता है, इक्वल टू रहता है किसको, इस दो जो बाकी के वाइंडिंग है उसके रिजल्टेंट को वो इक्वल रहता है, लेकिन कैसा रहता है, अपोजिट रहता है। मतलब आप यहाँ का जो ईएमएफ है उससे ईएमएफ इज इक्वल टू लिख दिया तो ये दो आगे का जो ईएमएफ रहेगा इसका रिजल्ट रहेगा और उसे आपको माइनस में इंडिकेट करना पड़ेगा। Now we will find the values of line current, line voltage, phase current, phase voltage in power in three-phase delta AC system. Now, as per we learned in the star connection, that procedure is going to be follow in delta connection also. Now here we are going to calculate the line current, line voltage, phase current, phase voltage, and power in three-phase AC system. First, we are going to have a view for the purpose of line voltage VL and phase voltage VPH in delta connection. It is seen in above figure that there is only one phase winding between the two terminals. That is, there is one phase winding between two wires. Therefore, in delta connection, the voltage between any pair of two lines is equal to the phase voltage of the phase winding which is connected between the टू लाइन्स। मतलब यहाँ पर देखिए हमारा जो फेज वोल्टेज है वो क्या रहेगा, इक्वल टू द लाइन वोल्टेज रहेगा, यहाँ ऐसे हमें यहाँ पर बताया गया है। क्यों, क्योंकि हमारा जो एक फेज है, ओके ये आर हमारा फेज है, ये आर फेज क्या किया गया है, देखिए एक ही वाइंडिंग को यहाँ पर कनेक्ट नहीं है, इसे क्या किया गया है, दो वाइंडिंग्स को कनेक्ट कर दिया गया है। देयरफॉर हियर द फेज वोल्टेज विल बी इक्वल टू द line voltage, that is explained here. Since the phase sequence RYB, therefore the direction of voltage from R phase towards Y phase is positive and the voltage of R phase is leading by 120 degree from Y phase voltage. Okay. Likewise, the voltage of Y phase is leading by 120 degree from phase voltage of B and its direction is positive from Y towards B. मतलब यहाँ पर हमने क्या किया है, हमारा जो फेज सीक्वेंस है वो आर वाई बी ऐसे इस तरह से कंसिडर कर लिया। जब ऐसे आप कंसिडर करेंगे तो आर से आपका जो वाई होगा वो पॉजिटिव से क्या करेगा, लीड करेगा आर को कितने डिग्री से, 120 डिग्री से। उसी तरह से आपका जो बी है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में लीड करेगा और वो भी 120 डिग्री से ही लीड करेगा। मतलब आर और बी में कितना डिग्री का अंतर रहेगा, 240 डिग्री का अंतर रहेगा। और नेगेटिव साइड से मेजर करेंगे तो -120 डिग्री का यहाँ पर फेज डिफरेंस रहेगा। इफ द लाइन वोल्टेज बिटवीन line 1 and line 2 is VRY, line 2 and line 3 is VYB, and line 3 and line 1 is VBR. This is indicated in this diagram. See, line 1 has, देखिए लाइन 1 एंड लाइन 2 VRY, मतलब देखिए लाइन 1 एंड लाइन 2 इन दो फेज के अंतर में अंतर का जो वोल्टेज रहेगा वो क्या रहेगा, VRY रहेगा। लाइन 1 एंड लाइन 3 का जो अंतर रहेगा मतलब वोल्टेज रहेगा वो VBR रहेगा। और लाइन 2 और लाइन 3 ये जो दो फेज है इसके बीच का जो वोल्टेज रहेगा वो VYB रहेगा। इसी डायग्राम से ये वैल्यूज यहाँ पर ले गए हैं। Then we see that VRY leads VYB by 120 degree and VYB leads VBR by 120 degree। मतलब ये क्या कर रहा है, ये जो वोल्टेज है VRY लीड्स VYB को ये VRY क्या कर रहा है, 120 डिग्री से लीड कर रहा है। उसी तरह से VYB लीड्स VBR, मतलब VBR को VYB जो है वो भी 120 डिग्री से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। Let's suppose VRY is equal to VYB is equal to VBR, that is at the output side. If suppose from this winding we are going to connect a balanced load, then the voltage, okay, line voltage VRY, VYB एंड VBR इज इक्वल टू द लाइन वोल्टेज VL। मतलब इसके क्या कहेंगे हम, लाइन वोल्टेज। हमने देखा है डायग्राम में, सॉरी डेफिनेशन में, लाइन वोल्टेज क्या होता है, द वोल्टेज विच इज गोइंग टू बी मेजर्ड बिटवीन द two phases, that voltage is called as a line voltage। and what is mean by this phase voltage, the voltage which is going to be measured between one phase and one neutral, that voltage is called as the phase voltage। तो फिर देखिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, VL is equal to V phase हो जाएगा। इन डेल्टा कनेक्शन द लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू द फेज वोल्टेज। मैंने अभी आपको बताया था उसमें क्या होता है, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू वी फेज फेज वोल्टेज हो जाता है।
इसका कारण भी हमने देखा है, क्योंकि एक जो आपका फेज है वो दो वाइंडिंग को कनेक्ट रहता है, इसलिए हमारा जो फेज डिफरेंस होगा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब जिसे हम वोल्टेज भी कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कह सकते हैं, वोल्टेज भी कह सकते हैं। तो फिर वो जो वोल्टेज होगा वो लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू द फेज वोल्टेज ही रहेगा। देन हैव अ व्यू ऑन द लाइन करंट एंड फेज करंट। अभी हमने लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बारे में पता, अब हम क्या करेंगे, लाइन करंट और फेज करंट के बारे में पढ़ेंगे डेल्टा कनेक्शन में। ये पॉइंट हमने स्टार कनेक्शन में पढ़ा था, ये पॉइंट भी हमने स्टार कनेक्शन में पढ़ा था। वहां पर क्या था, वी एल इज इक्वल टू रूट थ्री वी पी एच था और लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट था। लेकिन डेल्टा में उसका इनवर्स हो जाता है, मतलब लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज होता है, और लाइन करंट और फेज करंट में क्या डिफरेंस होता है, उसका रिलेशन क्या है, ये हम इस इक्वेशन में पढ़ेंगे। सी current in line 1 or I1 is equal to IR minus IB. Current in line 2 is equal to I2 is equal to IY minus IR, and current in line 3 I3 is equal to IB minus IY. ये हमने कंसिडर कर लिया है। कंसिडर मतलब ये कहाँ से कंसिडर कर लिया है, इसी डायग्राम में से कंसिडर कर लिया है। देखिए यहाँ पर ये जो आपका लाइन 1 है मतलब करंट I1 है, उसका वैल्यू क्या रहेगा, IR माइनस IB रहेगा। ये जो लाइन 2 है मतलब करंट I2 है, उसका डिफरेंस क्या रहेगा, आई वाई माइनस आई आर रहेगा। और ये जो करंट 3 है उसका डिफरेंस क्या रहेगा, मतलब आई थ्री, वो आई बी माइनस आई वाई रहेगा। ओके, वही यहाँ पर क्या किया है, नोट कर दिया है डेल्टा कनेक्शन में। तो फिर इस तरह का फेजर डायग्राम हमने पिछली बार भी देखा था, यहाँ पर भी देखा है। इसको स्टेप वाइज स्टेप कैसे फॉलो करना है ये मैं आपको बता दूंगा। स्टार कनेक्शन में उसे फॉलो करके मैंने सेपरेटली ड्रॉ भी कर दिया था, वही प्रोसीजर यहाँ भी हम यूज करेंगे। देखिए हमारा जो वी आर वाई, वी वाई बी और वी बी आर, ये जो है इनमें 120 डिग्री का फेज एंगल का डिफरेंस है। तो फिर हमारा जो आई आर, ये जो करंट है वो क्या करेगा, इन फेज नहीं रहेगा, इस वोल्टेज के इन फेज नहीं करे रहेगा, वो क्या करेगा, यहाँ पर थोड़े एंगल से यहाँ पर लैग करेगा। देयरफॉर एज्यूमिंग द current of VRY, IR is going to be lag VRY by an angle phi. Like that, IY is also going to lag VYB and VIB is also going to lag the VBR. यहाँ पर ये क्या कर रहा है, लैग हो रहा है। Therefore हम क्या करेंगे, प्रोसीजर फॉलो करेंगे। आई आर का इनवर्स आई आर का हम अपोजिट ड्रॉ करेंगे विद सेम मैग्नीट्यूड, डॉटेड लाइन से यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है माइनस आई आर। उसी तरह से इस आई वाई का भी हम अपोजिट ड्रॉ करेंगे विद सेम मैग्नीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन माइनस आई वाई, और इस आई बी का भी हम अपोजिट ड्रॉ करेंगे विद सेम मैग्नीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन माइनस आई बी, विच इज शोन एज अ डॉटेड लाइन। देयरफॉर हम क्या करेंगे, ये जो माइनस आई बी है उसका पैरेलल लाइन हम आई आर के एंड से ड्रॉ करेंगे, और माइनस आई बी के एंड से हम आई आर का पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। इसी का पैरेलल यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, और इस आई बी का माइनस आई बी का पैरेलल यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। तो फिर इस पॉइंट से हम इंटरसेक्शन क्रॉस करेंगे, और उससे वहाँ पर जो हमें करंट मिल जाएगा, रिजल्टेंट करंट ऑफ आई आर एंड माइनस आई बी, इट विल बी आई आर माइनस आई बी, आई आर एंड माइनस आई बी, इट इज गोइंग टू बी राइट हियर। लाइक दैट ऑल्सो हियर जो आई वाई है उसका पैरेलल यहाँ पर निकालेंगे, और जो माइनस आई आर है उसका पैरेलल यहाँ पर निकालेंगे, और इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, आई वाई माइनस आई आर मिलेगा, जो यहाँ पर लिखा गया है। ये आपका क्या है, आई वाई माइनस आई आर। उसी तरह से आई बी और माइनस आई वाई का भी एक रिजल्टेंट निकालेंगे, और उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, आई बी माइनस आई वाई। Why it is going to be denoted as IB minus IY? Because the current which is going to be shown here is a resultant of this IB and this minus IY. Therefore, it is going to be declared as a IB minus IY. और उसी तरह से हम ये फेजर डायग्राम निकालेंगे। फिर लाइन एंड फेज करंट एंड लाइन एंड फेज वोल्टेज इन डेल्टा कनेक्शन, ये जो यहाँ पर प्रोसीजर आपको दिया गया है, इसे फॉलो करने की प्रोसीजर दी गई है। इसमें डिफरेंस कितना है, देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना है, देखिए ये जो हमारा था वो 120 डिग्री का डिफरेंस था। उसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा एंगल ले लिया, मतलब आई आर और आई वाई में भी 120 डिग्री का ही डिफरेंस रहेगा।
यहाँ पर जो आप आई बी ड्रॉ करेंगे वो कितने डिग्री का रहेगा, यहाँ पर 120 डिग्री का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाफ हो जाएगा। वो कितना डिग्री रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। और जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे तब यहाँ पर जो डिग्री रहेगा वो कितना रहेगा, 60/2 रहेगा। देयरफॉर देखिए यहाँ पर आई एल और आई वन इज इक्वल टू फर्स्ट करंट के लिए हम फाइंड आउट करेंगे सिर्फ और सिर्फ। तो फिर आई वन का फाइंड आउट करने के बाद आई टू और आई थ्री हम सिमिलरली लिख सकते हैं। देयरफॉर वी आर गोइंग टू draw a current equation for I1 only. I1 is equal to 2 into I phase into cos 60 divided by 2. Therefore cos 60 divided by 2 is equal to cos 30. 60 divided by 2 30 degree हो जाएगा, 2 into I phase into cos 30. Therefore when you are going to put this cos 30 in your calc, you will get the answer √3 divided by 2. Therefore 2 into I phase into √3 divided by 2 इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर क्या होगा, ये जो हमारा 2 है वो डिवाइड में, इसलिए ये 2 और ये जो न्यूमरेटर का 2 है ये गेट कैंसिल हो जाएगा और हमें लास्ट में जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, आई एल इज इक्वल टू √3 IPH। मतलब हमारा जो डेल्टा कनेक्शन है उसमें हमारा जो करंट है वो क्या रहेगा, आई एल इज इक्वल टू √3 IPH रहेगा। और स्टार कनेक्शन में हमने देखा था वहां पर क्या था, आई एल इज इक्वल टू IPH था और वोल्टेज जो था वो वी एल इज इक्वल टू √3 VPH था। लेकिन यहाँ पर डेल्टा कनेक्शन में वी एल इज इक्वल टू VPH रहेगा और आई एल इज इक्वल टू √3 IPH रहेगा। दैट इज लाइन करंट इज इक्वल टू √3 फेज करंट। In delta connection, line current is √3 times of phase current. Similarly, we can find the remaining two lines. अब हम I1 के लिए फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर देखिए IL और I1 लिखा था, उसी तरह से I2 और I3 जो रहेगा वो भी क्या मिलेंगे हमें, √3 IPH √3 IPH ही मिलेंगे। जब सपोज हम बैलेंस लोड इस डेल्टा कनेक्शन को कनेक्ट करेंगे तो फिर हमारे जो I1 I2 I3 है वो इक्वल फॉर्म में रहेंगे। मतलब I1 इज इक्वल टू I2, I2 इज इक्वल टू I3 एंड I3 इज इक्वल टू IL रहेगा। मतलब ये जो हमारे लाइन करंट है हमारा क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा। हेंस IL इज इक्वल टू √3 IPH। अगर आपको IL फाइंड करना है, लाइन करंट फाइंड करना है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, √3 IPH कर सकते हैं। मतलब √3 इंटू फेज करंट कर सकते हैं और आपको यहाँ पर लाइन करंट मिल जाएगा। Power in delta connection, we have completed the phase voltage, then line voltage, phase current, line current. We got a relation between the line voltage, phase voltage and line current, phase current. Now after completing that part, we are going towards the next point of delta connection, power in delta connection. Power क्या रहेगा? We know that the power of each phase, कौन हमारा जो phase होता है एक सिंगल फेज, उसमें हमारा पावर क्या होता है, VPH इंटू IPH इंटू कॉस फायर होता है। ओके, तो फिर एंड द टोटल पावर ऑफ 3 फेज, एक फेज का क्या होगा, VPH IPH कॉस फायर, 3 फेज के क्या होंगे, 3 इंटू VPH इंटू IPH इंटू कॉस फायर, इस तरह का रहेगा। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ फेज करंट एंड फेज वोल्टेज इन डेल्टा कनेक्शन, IPH इज इक्वल टू IL अपॉन √3। ओके, IPH इज इक्वल टू क्या है, IL अपॉन √3। अभी हमने यहाँ पर देखा है IPH इज इक्वल टू क्या है, IL अपॉन √3 है। देयरफॉर सी VPH इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, VL। देखिए यहाँ पर IPH इज इक्वल टू IL अपॉन √3 कैसे आ गया, यहाँ पर IL इज इक्वल टू √3 इंटू IPH है। तो फिर IPH फाइंड आउट करते वक्त ये जो आपका √3 है वो इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड को जाएगा, तो फिर ये इंटू का है क्या हो जाएगा, डिवाइडेशन हो जाएगा। देयरफॉर IPH इज इक्वल टू IL अपॉन √3 हो जाएगा। देयरफॉर IPH इज इक्वल टू IL अपॉन √3 यहाँ पर पुट किया गया है। VPH इज इक्वल टू VL है, हमें पता है। तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपल से IPH इज इक्वल टू IL अपॉन √3 एंड VPH इज इक्वल टू VL, ये जो दो इक्वेशन है हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। देयरफॉर P इज इक्वल टू 3 इंटू VL इंटू IL अपॉन √3 इंटू कॉस फाई हो जाएगा। तो फिर 3 का जो सिंप्लीफिकेशन है वो हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। देयरफॉर दिस डिनोमिनेटर √3 विल गेट कैंसल टू द वन ऑफ द न्यूमरेटर √3। जब कैंसिल हो जाएंगे तो फिर हमें बाद में इक्वेशन क्या मिल जाएगा, पावर का, P इज इक्वल टू √3 VL IL cos फाई मिल जाएगा। पावर इन डेल्टा कनेक्शन P इज इक्वल टू 3 इंटू VPH IPH cos फाई रहेगा जब आप फेज वोल्टेज और फेज करंट लेंगे। जब आप लाइन करंट और लाइन वोल्टेज लेंगे तब क्या होगा, P इज इक्वल टू √3 VL IL cos फाई हो जाएगा।
where cos phi is equal to power factor, the phase angle between voltage and phase current, not between the line current and line voltage. ये जो हमारा पावर फैक्टर है वो किसका फेज एंगल रहेगा? देखिए ये जो फेज एंगल ये जो एंगल है वो किसका रहेगा? फेज वोल्टेज और फेज करंट का रहेगा. इट नॉट गोइंग टू बी द फेज एंगल बिटवीन द लाइन करंट एंड लाइन वोल्टेज. इन दोनों में से नहीं रहेगा. ये किसका रहेगा? फेज एंगल फेज वोल्टेज और फेज करंट का रहेगा. Good to remember, in both star and delta connection the total power on balanced load is same. मतलब जब बैलेंस लोड आप कनेक्ट करेंगे स्टार में भी और डेल्टा में भी तो पावर वहाँ पर जो कंज्यूम होगा और रिक्वायर्ड होगा वो क्या रहेगा? P इज इक्वल टू रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाई ही रहेगा. इन बैलेंस सिस्टम व्हाट इज मीन बाय द बैलेंस सिस्टम? हमने पहले भी देखा है. बैलेंस लोड मतलब क्या होता है? व्हेन ऑल द थ्री फेज वोल्टेजेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तीनों फेज का वोल्टेज इक्वल रहेगा तब उसे हम क्या कहेंगे? फेज वोल्टेज. जो बैलेंस वोल्टेज बैलेंस लोड हम कह सकते हैं. ऑल फेज वोल्टेज आर इन फेज विद ईच अदर हैविंग 120 डिग्री फेज डिफरेंस. उसमें क्या होना चाहिए? फेज वोल्टेज में वोल्टेज ईच फेज का जो वोल्टेज है उनमें 120 डिग्री का डिफरेंस रहना चाहिए. ऑल थ्री फेज करंट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. इक्वल इन मैग्नीट्यूड रहेंगे तभी हमारा जो बैलेंस लोड का कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगा. ऑल फेज करंट्स आर इन फेज by each other, that is 360 divided by 3 is equal to 120 degree. A three-phase balanced load is a system in which the load connected across three phases are identical. मतलब वहाँ पर हमारा जो लोड है वो किस तरह का रहना चाहिए? आइडेंटिकल ही रहना चाहिए. Then here we completed the part of the delta connection. पिछले लेक्चर को हमने स्टार कनेक्शन देखा था, इस लेक्चर में हमने डेल्टा कनेक्शन देखा है. अब हम क्या करेंगे? स्टार कनेक्टेड लोड और बैलेंस कनेक्टेड लोड मतलब क्या है ये देखेंगे. मतलब इसका कंपैरिजन अब हम देखने वाले हैं. देखिए स्टार कनेक्शन में हमें क्या बताया गया है? इन स्टार कनेक्शन द स्टार्टिंग और फिनिशिंग एंड्स सिमिलर एंड्स ऑफ थ्री कॉइल्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म the neutral point. A common wire is taken out from a neutral point which is called as the neutral. मतलब स्टार कनेक्शन में क्या किया जाता है? जो हमारे थ्री वाइंडिंग्स हैं उनके स्टार्टिंग एंड और फिनिशिंग एंड उसको क्या किया जाता है? एक दूसरे को कनेक्ट कर दिया जाता है. वहां पर हमें एक पॉइंट मिल जाता है, उसे हम क्या कह सकते हैं? न्यूट्रल कह सकते हैं. लेकिन डेल्टा में किस तरह का होता है? अभी हमने देखा डेल्टा में जो फर्स्ट एंड ऑफ वन टर्मिनल है वो क्या होता है? सेकेंड एंड ऑफ सेकेंड टर्मिनल को, फिनिशिंग एंड ऑफ सेकेंड टर्मिनल को कनेक्ट किया जाता है. एक दूसरे को सीरीज में कनेक्ट कर दिए जाते हैं, इसीलिए वहां पर कोई भी स्टार न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलता. वही हमें सेकंड में बताया गया है. देयर इज अ न्यूट्रल और स्टार पॉइंट. हम उसे क्या कह सकते हैं? न्यूट्रल पॉइंट भी कह सकते हैं या फिर स्टार पॉइंट भी कह सकते हैं. उसी तरह से डेल्टा कनेक्शन में किसी भी तरह का न्यूट्रल पॉइंट और डेल्टा स्टार पॉइंट हमें मिलता नहीं है. ओके, डेल्टा कनेक्शन में. Third, three-phase four-wire system is derived from star connection. We may also derive three-phase three-wire system for star connection. मतलब स्टार कनेक्शन में हम थ्री फेज फोर वायर सिस्टम भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम भी ड्रॉ कर सकते हैं. लेकिन डेल्टा कनेक्शन में हम सिर्फ और सिर्फ थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम ही ड्रॉ कर सकते हैं. लाइन करंट इज इक्वल टू द फेज करंट, दैट इज आई एल इज इक्वल टू आई पेज रहेगा. और यहाँ पर वी एल इज इक्वल टू वी पेज रहेगा. मतलब लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज रहेगा डेल्टा कनेक्शन में. उसी तरह से स्टार कनेक्शन में वी एल इज इक्वल टू रूट थ्री वी पेज रहेगा और स्टार कनेक्शन में आई एल इज इक्वल टू रूट थ्री वी पेज रहेगा. द टोटल पावर ऑफ थ्री फेज कुड बी P is equal to root 3 VLIL cos phi और P is equal to 3 VPH IPH cos phi रहेगा. और उसी तरह से डेल्टा कनेक्शन में रहेगा जब बैलेंस लोड हम कनेक्ट करेंगे. The speeds of star connected motors are slow as they receive 1 upon root 3 voltage. When we are going to connect your motor in a star connection, then their voltage is get reduced by one third of the phase voltage, and therefore the voltage at the starting is going to be, that is nothing but for the starting also and for the running also, the voltage is going to be reduced by one third. But in delta connection no such type of condition is going to be applied. Therefore full load voltage which is going to be applied at the stator side is going to be act as a starting voltage also and running voltage also. In star connection the phase voltage is low as one third
of line voltage, so it needs a low number of turns, hence saving in copper. यहाँ पर क्या हो जाता है, वन थर्ड ऑफ कॉपर, वन थर्ड ऑफ वोल्टेज कम हो जाता है, therefore the copper which is going to be used as in a turns, that is going to be reduced here, saving of copper is going to be happen here. But such type of point is not going to be happen here, because any type of voltage, the voltage is not going to be reduced here any type like one third. Low insulation required as phase voltage is low, इंसुलेशन जो हमें लगेगा वो कम लगेगा क्योंकि फेज वोल्टेज हमारा क्या है, लो है. हेवी इंसुलेशन इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड बिकॉज इज लाइन फेज वोल्टेज इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, लाइन वोल्टेज है. Where the delta connection and star connections are going to be used in power transmission, star connection system is generally and typically to be used. Star connection जो है वो power transmission में हम use करते हैं. In power distribution and industries, delta connection system is generally typically used. यहाँ पर कुछ इंटरचेंज है, देखिए जो हमारा ये स्टार कनेक्शन है, ओके, ये जो हमारा स्टार कनेक्शन है वो कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है. स्टार कनेक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में यूज किया जाता है, और डेल्टा कनेक्शन जो है वो हमारा ट्रांसमिशन में यूज किया जाता है. एक इंटरचेंज आप ध्यान में रखिए और नोट करते वक्त अपने नोटबुक में ये नोट करके लीजिए. देन डिफरेंस बिटवीन बैलेंस लोड एंड अनबैलेंस लोड. अब हमने स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में कंपैरिजन देखा है, अब हम क्या करेंगे, बैलेंस लोड और अनबैलेंस लोड में क्या डिफरेंस होता है ये हम देखने की कोशिश करेंगे. ठीक है, बैलेंस लोड मतलब क्या होता है, वेयर द इम्पिडेंसेस आर इक्वल टू ईच अदर. थ्री फेज के जो थ्री इम्पिडेंसेस होंगे वो यहाँ पर इक्वल होंगे, लेकिन अनबैलेंस लोड में वो अनइक्वल रहेंगे. बैलेंस लोड में जो थ्री फेज के थ्री आपके करंट से, ओके, आई आर, आई वाई, आई बी, आर फेज का, वाई फेज का और बी फेज का, ये क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे. बट इन अनबैलेंस लोड दैट इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू ईच अदर. फेज एंगल जो रहेगा, तीनों फेज, फेज एंगल मतलब तीनों वोल्टेज और तीनों करंट में बीच का जो एंगल रहेगा वो इक्वल रहेगा, लेकिन अनबैलेंस लोड में वो अनइक्वल रहेगा. पावर फैक्टर ऑफ ऑल फेजेस आर सेम, यहाँ भी पावर फैक्टर जो है वो सेम रहेगा, और यहाँ पर भी पावर फैक्टर ऑफ ऑल द फेजेस आर सेम, यहाँ पर भी सेम ही रहेगा. इन स्टार कनेक्शन न्यूट्रल पॉइंट करंट विल बी जीरो. इन डेल्टा, इन स्टार कनेक्शन न्यूट्रल पॉइंट करंट विल बी नॉट जीरो. यहाँ पर देखिए बैलेंस लोड, अगर स्टार कनेक्शन में आप बैलेंस लोड कनेक्ट करते हैं तो न्यूट्रल पॉइंट का जो करंट है वो आपका जीरो हो जाएगा, और स्टार कनेक्शन में अगर आप अनबैलेंस लोड कनेक्ट करते हैं तो स्टार कनेक्शन में से मतलब न्यूट्रल पॉइंट से जो करंट फ्लो होगा इट इज नॉट इक्वल टू द जीरो. वो क्या हो जाएगा, कुछ वहां पर कुछ एम्पेयर का करंट फ्लो हो जाएगा. एग्जाम्पल थ्री फेज इंडक्शन मोटर, एग्जाम्पल डोमेस्टिक एंड कमर्शियल लोड. इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इंडक्शन मोटर रह सकता है बैलेंस लोड का. अनबैलेंस लोड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, डोमेस्टिक और कमर्शियल लोड हो सकता है. डोमेस्टिक एरिया मतलब आपका घर का जो एरिया है उसे हम डोमेस्टिक एरिया कह सकते हैं या फिर रेसिडेंटल एरिया कह सकते हैं. वहां पर देखिए आपके घर में, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बैलेंस और अनबैलेंस का. सपोज आपके घर में एक फैन, एक बल्ब चल रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि जो आपका नेबरहुड है उसके घर में भी एक फैन और एक बल्ब ही चलता होगा. वहां पर एक टीवी भी चल रहा होगा, वहां पर एक मोबाइल भी चार्जिंग को लग गया होगा. मतलब आपके घर में जितना पावर कंज्यूम किया जाता है उतना ही पावर आपके नेबर के घर में कंज्यूम नहीं किया जा रहा है. जब वो कंज्यूम कर दिया जाएगा आपके कॉलोनी में सभी घर में सेम ही पावर कंज्यूम किया जाएगा, तब आप उसे बैलेंस लोड कह सकते हैं. अगर सेम पावर इस्तेमाल किया नहीं जा रहा होगा तो आप उसे क्या कहेंगे, अनबैलेंस लोड कह सकते हैं. Then we are going to have a last part of this chapter. Some definitions are given here. What is mean by the line voltage? It is defined as the potential difference or voltage measured between any two live lines of three phase system. Line voltage VRY, VYB or VBR. That nothing but the potential difference. The potential difference is also called as the voltage. Voltage का ही मतलब potential difference होता है. तो फिर line voltage क्या होता है? The voltage which is going to be measured between the two phases. It may be between R and Y, it may be between Y and B, or it may be between B and R. That voltage is called as the line voltage. What is mean by the phase voltage? It is defined as the potential difference between any one live line and neutral of three-phase system. Phase voltage VRN, VYN or VBN. What is mean by the voltage, phase voltage? The phase voltage is nothing but the potential difference or voltage which is going to be measured between any one of the phase
and a neutral wire, that is called as the phase wire. You can take a voltage between the R phase and neutral, Y phase and neutral, or B phase and neutral, that is nothing but the phase voltage. Line current, the current passing through any line of the थ्री फेज सप्लाई इज कॉल्ड एज द लाइन करंट। मतलब जो सप्लाई हमने दिया है वायर्स के थ्रू, उस वायर्स में से जो आप करंट मेजर करेंगे उसे आप लाइन करंट कह सकते हैं। एंड व्हाट इज मीन बाय द फेज करंट? द करंट पासिंग थ्रू एनी फेज और सिंगल वाइंडिंग ऑफ थ्री फेज सिस्टम। अगर एक थ्री फेज सिस्टम वहां पर इंप्लीमेंट कर दिया है तो उसके वाइंडिंग का जब आप करंट मेजर करेंगे तब उसे आप क्या कह सकते हैं? फेज करंट कह सकते हैं। बैलेंस लोड, एंड बैलेंस लोड, अभी मैंने इसका एक एग्जांपल भी दिया है, उसका डेफिनेशन भी ऊपर हमने देखा था। बैलेंस लोड मतलब बैलेंस्ड थ्री फेज लोड इज डिफाइंड एज स्टार और डेल्टा कनेक्शन ऑफ थ्री इक्वल इम्पीडेंसेस हैविंग इक्वल रियल पार्ट्स एंड इक्वल इमेजिनरी पार्ट्स एंड देयर एंगल्स आर इक्वल। मतलब यहाँ पर क्या होता है, बैलेंस लोड का मतलब क्या होता है? जब आप लोड कनेक्ट करने के बाद तीनों वाइंडिंग्स में भी, ओके, आर वाइंडिंग, वाई वाइंडिंग और बी वाइंडिंग, तीनों वाइंडिंग में भी अगर सेम इम्पीडेंस हो, सेम करंट फ्लो होता हो, सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो आप उसे क्या कह सकते हैं? बैलेंस लोड कह सकते हैं। इफ दैट फैक्टर्स आर नॉट गोइंग टू बी satisfied here, then that load is called as the unbalanced load. Then thank you for watching this video. Here the chapter number 3 is completed, and thank you for joining. Thank you very much.